Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Aniket Gupta. So today we are going to discuss a very important topic, that is C4 cycle, and this topic is from the unit photosynthesis. And in my previous video lecture I had talked about the C3 cycle, and if you haven't watched that video I will share the link in the description box, and also you can join my telegram channel. For that I will provide the link to you. So this is a cycle that we're going to discuss in this video lecture. So let's start. C4 photosynthesis, this is a kind of photosynthesis, has evolved one of the major carbon concentrating mechanism which is used by land plants to compensate for limitations associated with low levels of atmospheric carbon dioxide, right? And this type of photosynthesis we had reported from siamese, sorghum, bicolor, sugarcane, and another plant amaranthus viridis, that is pigweed. ठीक है, इन चार प्लांट्स में C4 फोटोसिंथेसिस देखने को मिली है, राइट? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? 1950s में HP कॉर्चैक एंड वाई कार्पिलॉव ने ऑब्जर्व किया दैट 14 कार्बन लेबल अपेयर्ड होता है इनिशियली इन द 4 कार्बन एसिड्स में, लाइक मैलेट और एस्पार्टेट में, जब हम कार्बन का 14 आइसोटोप यूज़ करते हैं इन कार्बन डाइऑक्साइड, and that carbon dioxide which is labeled with carbon 14 isotope was provided to the leaves of sugarcane and maize in the light. This finding was unexpected because a 3 carbon acid, that is 3 phosphoglycerate, is a first label product in the Calvin Benson. Then another two scientists, that is MD Hatch and C.R. Slack, explained that a particular distribution of radioactive carbon by proposing an alternative mechanism to the Calvin Benson cycle. इन्होंने एक alternative mechanism दिया, किसके alternative? Calvin Benson cycle, that is C3 cycle में, और इस pathway को इन्होंने नाम दिया C4 photosynthetic carbon cycle, because यहाँ पर जो first product बनता है वो होता है 4 कार्बन एसिड, राइट? इसलिए हम इसको C4 साइकिल भी बोलते हैं, और हैच एंड स्लैक साइकिल after the name of two scientists. Now these are the some important points related to the C4 cycle. C4 plants में, as we know that the first product is a 4 carbon acid, that is oxaloacetate, and this C4 cycle exhibits a number of specific anatomical, physiological, biochemical characteristics that will constitute the C4 syndrome. And one particular anatomical feature is that this C4 plants have two distinct photosynthetic tissues present in their leaves, right? And in this case, the vascular bundles which are comprised of vascular tissues, they're quite close together, and each bundle is surrounded by a tightly fitted layer of cells, right? हर एक बंडल के अराउंड देर इज़ अ टाइटली फिटेड लेयर ऑफ सेल्स called bundle sheath. That cells will constitute the bundle sheath, and each cell of that bundle sheath is known as bundle sheath cells. Now between the vascular bundles and adjacent to the air spaces, there are the more loosely arranged mesophyll cells, right? वहाँ पर mesophyll cells होंगे which are loosely arranged. This distinction between the mesophyll and the bundle sheath photosynthetic cells called Kranz anatomy, and this anatomy plays a major role in the C4 syndrome. ठीक है, there is a distinction occurs between the mesophyll and the bundle sheath cells. Now this is the diagram. You can see over here, this ring-like structure constitute the bundle sheath, right? And these cells, you can see over here, these cells are the mesophyll cells,
right? And this is a cross section of a leaf of maize, that is Zea maize, which showing the arrangement of mesophyll and bundle sheath cells. Now, सिंस द सेमिनल स्टडीज़ ऑफ द 1950s एंड 1960s में जो स्टडीज़ हुई उन्होंने C4 साइकिल में देखा हैज़ बिन एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर लीफ स्ट्रक्चर। जो C4 साइकिल है वो किससे एसोसिएटेड है? विद अ पर्टिकुलर लीफ स्ट्रक्चर, और उसको हम बोलते हैं क्रैंस एनाटॉमी। ना तो टर्म क्रैंस, ये जो टर्म क्रैंस आई कहाँ से आई? ये आई है एक जर्मन टर्म, दिस इज़ अ जर्मन टर्म विच मीन्स अ रीथ। रीथ का मतलब होता है रिंग। क्या होता है? रिंग। Now, this typical Kranz anatomy exhibits an inner ring of bundle sheath cells around the vascular tissues। ठीक है, जो जैसा हमने देखा यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यूज़ के अराउंड एक रिंग बनी है बंडल शीट सेल्स की, और एक बाहर वाली लेयर है किसकी? मेसोफिल सेल्स की। दिस पर्टिकुलर लीफ एनाटॉमी जनरेट्स अ डिफ्यूजन बैरियर। इस तरह की एनाटॉमी ने एक डिफ्यूजन बैरियर को जनरेट किया। नाउ फर्स्ट इज क्या है? इट सेपरेट्स द अपटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन इन मेसोफिल सेल्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन बाय रुपिस्को इन द बंडल शीट सेल। सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करेगा वो होगा मेसोफिल सेल। उसके बाद वो मेसोफिल सेल है वो किसको देगा? बंडल शीट सेल को देगा। और बंडल शीट सेल के अंदर कौन बैठा है? रुबिस्को बैठा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन करवाएगा। ठीक। सेकेंड इज द इट लिमिट्स द लीकेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बंडल शीट टू मेसोफिल सेल्स, राइट। अब एक बार जब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चलेगी? बंडल शीट सेल्स में चलेगी, तो वो मेसोफिल सेल्स में वापस नहीं आएगी, वो लिमिट करेगा लीकेज को, ठीक है, रोकेगा। एंड देयर आर नाउ क्लियर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल सेल C4 फोटोसिंथेसिस। हमें एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में भी C4 फोटोसिंथेसिस देखी गई है, लाइक नंबर ऑफ ग्रीन एल्गा, डायटॉम्स, एक्वेटिक एंड लैंड प्लांट्स। नाउ this is the mechanism of C4 metabolism in simple way, right? You can see over here two cells are involved, bundle sheath cells and mesophyll cells. This is the intercellular space, and you can see over here an important enzyme, that is rubisco, is present exclusively. So in this case जो कार्बन डाइऑक्साइड की पंपिंग है C4 मेटाबॉलिज्म में, वो किसी भी तरह के मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर पे रिलाई नहीं होती। इन दिस केस देयर इज़ अ प्रीफिक्सेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की आफ्टर कन्वर्जन टू बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद एक रिएक्शन होती है, ये जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रीफिक्स होगी किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। देन उसके बाद क्या हुआ? फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने इसकी प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हुआ? ऑक्सैलो एसीटेट में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट 2 फ्रॉम ऑक्सैलो एसीटेट इन द मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स में यू कैन सी ओवर हियर, मेसोफिल सेल्स आ गए। मेसोफिल सेल्स में जो हमारी ये थी फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हुई किस तरीके से? इन इसकी प्रेजेंस में, बाइकार्बोनेट्स की प्रेजेंस में। नाउ आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट टू मैलेट, अब जैसे ही ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये जो मैलेट है डिफ्यूज़ करेगा थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा इनटू द बंडल शीट सेल्स। बंडल शीट सेल्स में जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पर देख रहे हो मैलेट कहाँ पर गया? बंडल शीट सेल्स में। यहाँ पर क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देगा एंड विच सर्व्स एज अ सबस्ट्रेट फॉर रुबिस्को। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसके लिए एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करेगी? रुबिस्को, राइट। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकली तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? पायरुवेट। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 कार्बन है, ठीक है, ये कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन कैसे हुआ? एक कार्बन यहाँ से निकल गई, राइट। नाउ
The formation of carbon dioxide gradient between the two compartments by this pumping process is due to the fact that the prefixation of carbon dioxide and its subsequent release are catalyzed by two different reactions, each of which is virtually irreversible. As a crucial feature of C4 metabolism, Rubisco is located exclusively in the bundle sheath chloroplast. ठीक है, now ये हमने देख लिया द रिएक्शन ऑफ दिस बाइकार्बोनेट विथ फॉस्फोइनोल पायरुवेट। हमने यहाँ पर देखा था इस रिएक्शन में देखा था कि जो बाइकार्बोनेट है वो किसके साथ रिएक्ट करा, दिस फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम दैट इज फॉस्फोइनोल कार्बोक्सिलेज, राइट, दिस इज द एंजाइम, यहाँ पे मैंने लिखा भी वो enzyme phosphoenol carboxylase. As the enzyme has a very high affinity for this bicarbonate, micromolar concentrations of bicarbonate are fixed very efficiently. fixed हो जाती हैं very efficiently. थोड़ा सा भी अगर concentration होगी बाइकार्बोनेट की बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगी. कौन फिक्स करेगा? एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. The formation of bicarbonate from carbon dioxide is facilitated by an enzyme carbonic anhydrase which is present in the cytosol of the mesophyll cell. हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रही है? बाइकार्बोनेट में. अब वो कन्वर्जन भी कोई ना कोई एंजाइम करेगा एंड दैट एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज विच इज प्रेजेंट इन द साइटोसोल ऑफ द mesophyll cell. Now, the release of carbon dioxide in the bundle sheath cell occurs in three different ways. 3 डिफरेंट वेज के थ्रू ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ है बंडल शीट सेल्स में वो होता है. ठीक है, नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं ये मैलेट विच इज़ अ 4 कार्बन एसिड. मैलेट ने इस एसिमिलेटरी पावर दैट इज़ NADP पॉजिटिव को यूज़ करके इसने NADPH प्लस H पॉजिटिव निकाला, बिकॉज यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले और ये NADPH प्लस H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल गया. ठीक है, ये क्या बना? पायरुवेट. अब ये ऑक्सैलो एसीटेट किस में कन्वर्ट होएगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट में. कैसे होगा? ATP का यूज़ करके, बिकॉज फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, इसको ऑक्सैलो एसीटेट के साथ किसको जोड़ना है? एक फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ना है, तो इसलिए यहाँ पर ये ATP यूज़ होता है. एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से मिलता है, यहाँ से ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी एंड देन एज ए रिजल्ट क्या बनेगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट. ठीक है, दीज आर द रिएक्शंस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड प्रीफिक्स्ड इन C4 मेटाबॉलिज्म इन मेसोफिल cells can be released in bundle sheath cell. ठीक है, in most C4 species decarboxylation of malate with an accompanying oxidation to pyruvate is catalyzed by malic enzyme. जो decarboxylation है malate की to pyruvate is catalyzed by malic enzyme, and in one group of these species term NADP malic enzyme type plants. ठीक है, इनमें ये NADP malic enzyme type plants होते हैं जहाँ पर रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर करता है बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट में, एंड ऑक्सीडेशन होती है मैलेट की पायरुवेट में, इज कपल्ड विद द रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव. ठीक है, इन अदर प्लांट्स जिसको हम NAD मैलिक इंजाइम टाइप बोलते हैं, जहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होएगी माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पर कहाँ हो रही थी? यहाँ पर हो रही थी बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट में, बट यहाँ पर कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी बंडल शीट सेल्स के, एंड इट इज़ अकम्पनीड बाय द रिडक्शन ऑफ NAD पॉजिटिव. यहाँ पर NADP पॉजिटिव, यहाँ पर NAD पॉजिटिव की रिडक्शन होगी. थर्ड वेरिएंट क्या है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेस टाइप प्लांट्स, जहाँ पर ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो डिकार्बोक्सिलेट होगा इन द साइटोसोल ऑफ द बंडल शीट सेल. ऑक्सैलो एसीटेट की डीकार्बोक्सिलेशन होएगी कहाँ पर? अब ये होएगी
बंडल शीट सेल के साइटोप्लाज्म में एंड एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट है और प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, दिस ये जो है क्या है, पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स द इम्पॉर्टेंट क्रॉप प्लांट्स मेज एंड शुगर केन। ये कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला, दैट इज एनएडीपी मैलिक इंजाइम टाइप प्लांट्स। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीडेशन होगी मैलेट की टू पायरुवेट इज कपल्ड विद द रिडक्शन ऑफ एनएडीपी पॉजिटिव, और ये कहाँ होगी, बंडल शीट सेल के क्लोरोप्लास्ट में। ये देखो बंडल शीट सेल का क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर इसकी क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, मैलेट से क्या बनेगा, पायरुवेट, और ये एनएडीपी पॉजिटिव की रिडक्शन होगी। फिर देखा हमने एनएडीपी पॉजिटिव की रिडक्शन हुई, क्या बना, एनएडीपीएच, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, वो C3 साइकिल में चला गया। बाकी वाला जो प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हो। द मैलिक एंजाइम प्रेजेंट इन द बंडल शीट सेल causes द कन्वर्जन ऑफ मैलेट टू पायरुवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो बंडल शीट सेल में यहाँ पर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, मैलिक एंजाइम। ठीक है, ये मैलिक एंजाइम ही क्या करता है, कन्वर्जन करवाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड बाय द रुबिस्को एंजाइम। जो बचा हुआ पायरुवेट है वो बाहर आ जाता है स्पेसिफिक ट्रांसलोकेटर से, कहाँ पे आ जाता है, फ्रॉम बंडल शीट सेल से यहाँ पर आ जाएगा मेसोफिल सेल्स में, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू आता है। एंड द एंजाइम पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज इन द मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फॉस्फोइनोल, ये जो पायरुवेट है यहाँ पर आ गया कहाँ पर, मेसोफिल सेल्स में, मेसोफिल सेल्स की क्लोरोप्लास्ट में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और ये कैसे कन्वर्ट होगा, इसमें एक एंजाइम यूज होगा, दैट इज पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। द नेम डाइकाइनेज मीन्स एन एंजाइम दैट कैटलाइज अ टू फोल्ड फॉस्फोराइलेशन, दो फॉस्फोराइलेशन करवाता है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जहाँ पर वन फॉस्फेट रेजिड्यू इज ट्रांसफर फ्रॉम एटीपी टू पायरुवेट। इस एटीपी से देखो, अब यहाँ पे देख सकते हो वेरी क्लियरली इज शोन ओवर हेयर, एटीपी से क्या बना, एएमपी। जब एएमपी बनता है तो एक फॉस्फेट इसका निकला और वो फॉस्फेट जाके किसके साथ जुड़ गया, पायरुवेट के साथ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वन फॉस्फेट कन्वर्टिंग इनटू द पायरो फॉस्फेट। जो सेकेंड फॉस्फेट है, क्योंकि डाइकाइनेज है, दो यहाँ पे होंगी, दो फॉस्फोराइलेशन होगी, एक में फॉस्फेट रेसिड्यू ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम एटीपी से पायरुवेट में, और सेकेंड वन जो है फॉस्फेट वो कन्वर्ट होता है इनटू द पायरो फॉस्फेट। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो पायरो फॉस्फेट। ठीक है, पायरोफॉस्फेट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट immediately hydrolyzes a newly formed pyrophosphate and thus makes this reaction irreversible. उसको वो irreversible बना देता है। In this way, pyruvate is transformed upon the consumption of two energy-rich phosphates of ATP। दो energy rich phosphates को यूज़ करके, किसके phosphates, ATP के phosphates को यूज़ करके pyruvate ट्रांसफॉर्म्ड होता है। किस में ट्रांसफॉर्म होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ठीक है, द लेटर इज एक्सपोर्टेड। अब ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ये कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, ये एक्सपोर्ट होता है इन एक्सचेंज फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट वाया अ फॉस्फोइनोल पायरुवेट फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट यहाँ पर बना, ये कहाँ जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बाहर आया, दिस इज़ द ट्रांसलोकेटर, और ये ट्रांसलोकेटर में क्या यूज़ होगा, एक फॉस्फेट यूज़ होगा, राइट। यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज़ होगा, एक्सचेंज फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहाँ पे देख सकते हो एक्सचेंज फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इसकी हेल्प से जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ये एक्सपोर्ट होगा कहाँ पे, फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द C4 मेटाबॉलिज्म, और इसमें हमने एक वेरिएंट को कंप्लीट करा है, दैट इज़ NADP मैलिक एंजाइम टाइप प्लांट्स का। नेक्स्ट हम NAD मैलिक एंजाइम टाइप पढ़ेंगे, एंड देन फर्दर क्या पढ़ेंगे, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज टाइप प्लांट्स को पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया हो।
अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।